جی اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کتب سے وہ بات پیش کریں جو ان کو تسلیم ہے. اگر ہم ان کو حدیث پیش کریں گے، قرآن کی آیت پیش کریں گے، وہ اس میں سے ہزاروں چور دروازے نکالنے کی کوشش کریں گے، اس میں سے جی ہزار جی قسم کی اس کے ابھی ساتھ جی جزاک اللہ جی. ندیم پرویز بھائی گفٹنگ کی ضرورت نہیں، آپ آگے ہمارے براڈ پہ، یہی بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. اور ایک اور بھائی کی بیچ میں کال ہے، اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ سارے ہم اکٹھے ہی آئے ہیں اصل میں نا. اچھا اچھا ماشاء اللہ جی. آپ یہ سمجھیں کہ کسی ساتھی نے ہمیں یہاں پر میسج دیا تو وہاں پر اچھا اردو پر گفتگو ہو رہی ہے اور نئے ساتھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بس جی 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 تو وہاں لنک شیئر ماشاء ہوا اللہ تو جی یہ سارے اکٹھے ہی آ گئے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ایسا ہے کہ کل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن کل وہ اچانک آئے اور انہوں نے خود ہی اس بات کی جو ہے نا بحث شروع کی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے جو آپ کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے اس کو مانتے ہو، جو مطلب کی نہیں ہوتی وہ اس کے بارے میں کہتے ہو. بھائی حدیثیں تو یہ تو بہت بعد کا سلسلہ ہے، حدیثوں کو ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں. نہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن جو وہ باطل زبان سے طویل انکار نہیں کرتے. جی زبان بے سے شک انکار بے نہیں شک. کرتے، لیکن جو وہ باطل طویل کرتے ہیں وہ انکار سے بھی برا ہے اور زندگیت اسی کا نام ہے. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے سامنے کھلا ہوا؟ جی جی ہے نا میرے پاس ہے. اردو کی بورڈ ہے آپ کے پاس؟ اردو نہیں ہے سر. اردو نہیں لکھ سکتے اس پہ آپ؟ نہیں. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ان سے بات کرنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی ایک دو ٹپس عرض کر دوں. نہیں اس میں سر اور ایک بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ایسا ہے کہ آپ کو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایف فائل جو ہے نا، اگر آپ کے اس میں ہے نا آپ کے پاس، تو مجھے جو ہے نا واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں تو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اچھا، انشاءاللہ. مجھے اگر بڑی اسکرین پر کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اپنا، جی جی میں کرتا ہوں ایک منٹ. کیونکہ ایک کیمرہ آن منٹ کر کے کرتا ہوں. دکھاؤں گا تو پھر وہ زیادہ واضح ٹھیک ہوگا. ہو گیا جی. یہ لیں جی بڑی اسکرین جی. اب یہ آگے میرے جی. پاس دوسرا موبائل ہے. جی اس میں نے صرف اور صرف پیچھے یہ اگر آپ جائیں گے، یہ گوگل پہ میں نے صرف اتنا لکھا ہے، یہ گوگل ہے آپ کے سامنے، اس پر میں نے جی صرف اتنا لکھا ہے: مہدی دوسروں کے پیچھے نماز نماز. پڑھے گا، لکھ کر مرزا قادیانی. یہ میں نے سرچ کیا ہے، جی لیکن اردو کی بورڈ سے لکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں نہیں ہے، موبائل میں ہے، موبائل میں تو کی بورڈ ہے سر. وہ بہت اچھی بات ہے. آپ موبائل میں ایسے ہی لکھیں گوگل پہ جا کے: مہدی جی دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا بقول مرزا قادیانی. جی لکھیں گے اپنے دوسرے موبائل میں. اس کو آپ جب سرچ کریں گے جی تو آپ کو جو پہلی ویب سائٹ دکھائی دے گی نا، جی جو پہلی ویب سائٹ دکھائی دے گی یہ ہے وہ ختم نبوت کی ویب سائٹ اچھا ہے اچھا ہماری. نیو صحیح ہے. ختم نبوت. اس پہ کلک کریں گے تو اس میں انہوں جی نے دلائل بھی لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے ان کو پیش کیے ہیں، ہمارے دلائل بھی جی لکھے ہوئے ہیں، ان کے دلائل بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ تو ہو صحیح گیا ہمارے دلائل. یہ جی سب سے پہلے تو ہمارے دلائل ہے نا کہ حدیث میں ہمارے دلائل آگے. جی صحیح مسلم کی حدیث آ گئی جو شاید آپ نے بیان کی ہے ان کو. میں پڑھی ہے، میں پڑھ چکا ہوں. ابن ماجہ کی آپ نے روایت آپ بتا رہے ہیں ان یہ کے. بھی پڑھ چکا ہوں، یہ بھی پڑھ لیکن چکا ہوں. ان سب سے آرام نہیں آئے گا. آرام کہاں سے آئے گا؟ یہ نیچے دیکھیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے. جی حدیث میں جی آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 444. 444 صحیح ہو گیا. یہ ہے ان کے اپنے گھر کا حوالہ. مرزا قادیانی کے الفاظ: غلام احمد قادیانی ان کا مدعی نبوت ہے جو کہتا ہے کہ صحیح میں ہے. مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں آیا ہوں. یہ اس صحیح ہو گیا. خود اپنے ملفوظات کی اس کے یہ الفاظ ہیں. اگر اب آپ کے پاس، آپ پاکستان نہ ہوتے، میں نے پوچھا صرف اس لیے تھا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں، یورپ نہیں اصل میں سنیے میں معذرت چاہتا ہوں اس بات سے. میں نے تو ابھی پتہ نہیں تھا نام کہ یہ بھی، میں سوچا کوئی قادیانی آ گیا ہے.
नहीं नहीं और कोई उसके लिए मैं गुस्से से कहा कि ये बात कहनी जरूरी नहीं। सर मैं नहीं मानसेरा में हूँ, अच्छा मैं अच्छा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं अपने भाइयों से तो कोई वो नहीं कर सकता ना, मैं ना ही नहीं ऐसी नहीं मैं बात सिर्फ मैं। पूछ इसलिए रहा था, मैं पूछ इसलिए रहा था कि इसका तरीका ये है कि अगर आप बाहर होंगे तो उनकी, मैं तो अभी गूगल पे लिखूंगा ना हाँ, अभी उनकी आपके उसकी सामने। वेबसाइट अलग है। जी हाँ जी जी जी, सही हो अगर गया। मैं यहाँ पर, ये गूगल है, इसमें मैं लिखता हूँ ना जी www alislam.com सिर्फ लिखूं तो काम हो जाता जी है। जी, हो गया, सही हो गया जी। alislam.org उर्दू या लाइब्रेरी, ये इनकी मिर्जाइयों की फौरन ये वेबसाइट खुल जाती है। ये उनकी जमात वेबसाइट, ये अहमदिया, नाम है जमात अहमदिया मुसलमान आलमगीर मोहब्बत साहब के लिए मौसूल आलमगीर मोहब्बत शकील फलाने फलाने जी। लाइब्रेरी कुतुब सिलसिला। अब इसमें आप जाएंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे तो सीधा ये उनकी लाइब्रेरी में आपको ले जाएगा। ये लाइब्रेरी में जो कुतुब सिलसिला है, इस पे क्लिक जी करेंगे यहाँ पर, तो ये ऊपर कुरान करीम का सेक्शन बना हुआ है, नीचे एक और सेक्शन हजरत खातमुल अंबिया, तीसरा मिर्जा कादियानी की कुतुब है, कुतुब मिर्जा कादियानी, ठीक है जी। इस पे हाँ जब जी आप क्लिक करते हैं तो इसमें एक तो उसका रूहानी खजाइन का सेट है, जो 85 किताबें उसने लिखी हैं, ये रूहानी खजाइन के जी अंदर पड़ी हुई हैं। दूसरा ये कुरान की तफसीर उसने जो कुछ आयतों की हुई है वो लिखा हुआ है। फिर नीचे हाँ अगर हाँ, जाएंगे, ये तज़किरा उसके इल्हामात वाली किताब है, मिर्जा कादियानी पर जो नमाज की कशफ अली, हाँ जी, कशूफ अली। फिर ये चंद एक किताबें हैं, तौज़ीउल मराम, फतह इस्लाम, अल वसीयत रसाला है, और यहाँ जी, पर हैं वो मलफूजात सही हो गया। का मैंने आपको बताया कि ये मलफूजात की यहाँ पर 10 जिल्दें हैं, हाँ जी, ठीक है जी। नहीं मेरे पास ठीक, डाटा मोबाइल बड़ा है, उसमें मैं 100 जल्दें करूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास पाकिस्तान ये वेबसाइट नहीं ना खुलेगी। जब आप alislam.com लिखेंगे ना तो आप तो वहीं पर रुक हाँ जी, जाएंगे, आप तो वहीं पर रुक हाँ जाएंगे, आप देख नहीं सकते वेबसाइट। सही हो गया, सही हो गया, अभी समझ गया हूँ जी। मसला ये है कि आपको इनकी कुतब पहले अपने ले लेनी चाहिए, हमें फॉलो कर लें, और ये हमें ये देख देखें अभी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिसर्चर वो बोल रहा है आपकी बात काट रहा हूँ, हमें फॉलो करो, हमारी ब्रॉड पर आना, मर्द के बच्चे हो तो, वरना मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि मैदान फलाना फलाना। मैं इनके ब्रॉड पे 2 दफा गया हूँ, हम्म, ठीक है। और जब मैंने असल मौजू शुरू किया तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो मुझे लेफ्ट कर दिया, ओ जी टाइम टाइम पास कर रहा है, ये फालतू बातें कर रहा है, ठीक है। तो मैं उनको यही बता रहा था कि एक इंसान को मरना तो एक बार है, मौत जी तो जी, एक बार आनी है, हाँ ठीक है। जी, दो दो जिंदगियां तो अल्लाह पाक ने दोबारा तो जिंदा करके फिर से जिंदा तो नहीं करना है ना। तो बेशक। आपका जो कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद है, अस्सलाम वालेकुम मुनीर खान साहब, ये नीचे नईम अवान साहब हैं, इनको उठा लें। जी नईम जी मैं अवान लेता हूँ, लिखा मैं हुआ है, लेता हूँ, मैं लेता हूँ, उनको लेता उठा हूँ, नहीं लें। भाई को लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल लेता हूँ जी। ये असल में ठहरे, अभी मैं इसको बड़ा भी कर लूँ ना, ताकि ये शहनशाह है, और ठहरे और भी आगे। शहनशाह साहब को बेशक ड्रॉप कर दें, इन्होंने ही आपका लिंक दिया हमें, ये हमारे भाई हैं, अच्छा तो कोई अच्छा मसला अच्छा नहीं। जी, तो अच्छा जी, इनकी ठीक हो जगह गया पर जी। उनको लेना चाहें या नदीम परवेज साहब की जगह लेना चाहें, वो एक ठीक, मिनट जरा ना उनकी जगह ले लें, इनको ले लें, क्या नाम है इनका, नईम अवान साहब को। चला जाता हूँ जी, मुझे कर वो दें, सीधा आपको मुझे ना कर ठहरे उनका दें। ठहरे स्कैन निकाल के दे देते हैं, उसको आप सेव कर। लेकिन ठहरे, बुनियादी मैं बात एक ये तो है, इसको बड़ा ऐसे कर लूँ ताकि सब ग्रुप में ऐसे आदमी बराबर आ जाएं। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, है। अब नहीं, मेरा सही हो कहने गया का मतलब ये है कि जब आप जी। हमें फॉलो कर लेंगे, मैं आपको फॉलो करता हूं, तो होता ये है कि आप जब भी इस तरह का कोई मसला होता है, आप हमें जी मैसेज करें। हमें हाँ ये हाँ देखकर बिल्कुल। इसलिए भागे हैं, और ये इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से, सोशल हाँ मीडिया जी, से, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, सही हो इनके गया। पास इन बातों के जवाब नहीं। हमें इनके किताबें अजबर हैं बेहमदही ताला, हमने इनकी मैं किताबें याद की हुई हैं, जी तो हमें देखते ही ये चीख मार के कहते हैं, ओहो हो, ये बदतमीज आ गए हैं, ये हमारे गुस्ताख आ गए हाँ हैं, जी, हम हाँ जी इनसे बात नहीं बिल्कुल करें। बिल्कुल सही हो गया। मैंने आपको फॉलो कर दिया है, आप फॉलो बैक कर दें, चल मैं इंशाल्लाह फॉलो बैक देता हूँ तो जी जी इंशाल्लाह आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये हमारे पास, जी क्योंकि सर, मैं मैंने आपको फॉलो बैक दे दिया, बाकी लोगों बल्कि अस्सलाम नईम वालेकुम। अमान भाई को भी और मुर्तजा भाई को भी अच्छा, फॉलो एक बैक दे मौका दें, दिया। छोटा सा बात का, छोटी सी एक जी बात। बात करें जी, आ, बात करें जी। आपका नाम मुनीर खान है ना? जी मुनीर जी भाई, ऐसा है ना कि मैं खुद भी पाकिस्तान में हूँ, जी तो मैंने आपको फॉलो किया, फॉलो बैक करके मैं आपको नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा इनकी वेबसाइट पाकिस्तान में खुलती कैसे। ठीक हो गया ठीक जी, है, मैं व्हाट्सअप नंबर हम तो आपको इस्तेमाल करते हैं ना।
जी हमारा तो रोज का वास्ता है इस चीज से। सही हो गया सर। जो ठीक हो बल्कि गया। जो है ना हम लोग अपने एक साथ में ब्राड पे आया करेंगे। आपको मैं मधु करूंगा इंशाल्लाह, जब भी मैं ब्राड ऑन करूंगा सबको मैंने फॉलो किया हुआ है इंशाल्लाह। तो ये जो है ना देखें, कहते हैं कि अगर कोई बुराई आप देखो हदीस में लिखा हुआ है तो उसको हाथ से अगर रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कर दिए जी। वीडियो पॉज हुई है। नहीं, 1 मिनट, वो अभी लगाने लगे हैं स्कैन आ जाए ठीक हो गया के जी। ऊपर। पिक्चर लगाने का तरीका है टिकटॉक के ऊपर ना। अच्छा ये वाला मैं अमर भाई आपको सेंड करता हूँ, ये एक दिन पहले भी आई थी मेरे साथ प्रॉब्लम, तस्वीर पूरी नहीं आती है। पहले मैं अपनी तस्वीर, खाली तस्वीर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा गड़बड़ आसानी हो जाए। मैं उसमें जो है नहीं कोई मसला उधर से आ रहा है उनको। एक तस्वीर अपनी लगा लेता हूँ बस, और उसके बाद कैमरा बैक साइड पे कर देता हूँ। ये हो गया जी। अभी दिखाइए जी जो भी दिखाना है। तब जिहाद एक इसको बड़ा जूम कैसे होगा जी ऑन स्क्रीन? मुनीर खान नहीं, भाई मेरे आप पास अपने प्रॉब्लम कैमरे पे क्रॉस मार देना। जी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। ना, उनका नेट का इशू है, मेरे ये पास 10 नहीं है। जिल्दों वाला नहीं भाई, ये 10 जिल्दों वाला है। ये मफलूजात के बारे में बता रहे हैं या कौन सी किताब है? ये मलफूज तब क्या बात कर रहे हैं अमर भाई? क्या हवाला क्या है इसका यार? ये सफा किताब का नाम 444 है ना, मैं कहते हैं मैं वाला आपको भेज देता हूँ। ये मुझे स्क्रीन पहले ऑफ करने दे 1 मिनट। आप मुझे ठीक हो जुबानी गया। हवाला दे दें, मैं यहाँ खुली हुई है, मैं खोल के बता देता हूँ। सफा 444 है मलफूजात का। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये 10 जिल्दों में, ये 5 मफलूजात जिल्द जिल्दों का नंबर क्या है? 444। जिल्द नंबर क्या है सर? जिल्द नंबर क्या है? ये तो वाला इन्होंने पढ़ा है, अब जल्द नंबर देखना पड़ेगा ना। दो एडिशन है ना, एक 10 जिल्दों वाला, एक 5 जिल्दों वाला। 10 तो ये चेक अच्छा करना पड़ता अच्छा, है। उसका ठीक हो सफा गया। 444 है। ये लें जी, सबको ले लिया जी, जो नीचे थे सबको मैंने ले लिया जी। ये तो सारे मैं आपको मुजाहिद भेजता आ हूँ। गए हैं। मैंने बहुत कि 1 मिनट अमर भाई, मैं ये स्कैन आपको भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है जनाब? सब भाइयों का कैसे हैं? ठीक है। अब ये कादियानी आया से अल्हम्दुलिल्लाह ना, सब फिर इसको ठीक लें। है। एक जगह खाली करें यार, सारे ना कुर्सियां। हाँ ठहरे 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 ठहरे। सेल नासिर के लिए कॉल करें, उसको कॉल करें। सेल नासिर कादियानी है, किसी को भी हाँ, बुलाएं। किसको हटाऊं? अभी किसको हटाऊं? ये खाली जगह आपके पास बन गई है ना, नीचे मोहम्मद सेल नासिर नाम की एक आईडी है, उसको कॉल डालें। हाँ जी, आपकी दो खाने बन गए जी, 2 खाने बन गए। सेल नासिर नहीं उठाना किसको है? नीचे आमर भाई, अब सारे जो है ना मरजाई जमा हो गए हैं, मक्खियों की भीड़ लग गई है। अगर किसी के अंदर है हिम्मत तो आ जाए ऊपर, आके बात कर ले, कोई मसला नहीं। एक आदमी आके तमीज के दायरे में रह के बात करे और सबको जो है ना तमीज के दायरे के अंदर बैठ के हम लोग उसका जवाब देंगे। ठीक है जी, क्योंकि गाली गलौज तो एक ना हम करते हैं ना दूसरे की सुनते हैं। जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास दलील मौजूद है तो गाली क्यों देने जी? हाँ, गाली देने की जरूरत क्या है? अभी देखें जी, एक वाटर लिखा हुआ है। ठीक है जी, वाटर वाटर को एक है कॉल मतलब। डालें। हाँ कॉल हाँ, डालें, वो भी वाटर। कादियानी। अच्छा जी, वाटर को लेते हैं। ठीक है, पहले इनको जान दो। आओ जी वाटर साहब, ऊपर आओ जी। अच्छा आमिर भाई, नीचे ना एक आईडी है MS, वो लगता है उन्होंने हम सबको फॉलो किया हुआ है। जहां जहां हम जाते हैं ना, वो पीछे पीछे वो आईडी पहुंच जाती है। तो MS को ही दे दें ऑफर, अगर कोई है उनकी नजर में कोई ऐसा कादियानी जो वाटर साहब आ गए। वाटर बात। साहब जी वाटर साहब बात करें। जी बात अस्सलाम करें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बड़ी अच्छी आपकी बातचीत हो रही थी। मैं सिर्फ एक सलाम करने आया था और दूसरा मैं गुजारिश करने आया था कि हमारा नाम अहमदी लिया जाए, ना कि कादियानी या मरज़ई लिया जाए। क्यों लिया जाए अहमदी? क्यों, किसके नाम पर अहमदी नाम आपने रखा हुआ है? जी हमारी जमात का नाम जमात अहमदिया, तो हम अहमदी कहलवाना आपकी पसंद जमात करते का हैं। नाम अहमदिया, जमात अहमदिया किसके नाम पर रखा गया? हाँ जी, बात ये है कि ये नाम मैंने नहीं रखा हुआ, मैं आपकी तरह का एक आम इंसान हूँ, लेकिन हमारा जमात अहमदिया से ताल्लुक है। हम अपने वो आप को मैं अहमदी अर्ज कर रहा कहलवाते हूँ हैं कि जमात और ना मैं जी, बदल जी। सकता हूँ। ये
अहमद नाम किसका था जिसकी वजह से आपने जमात अहमदिया रखा, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अहमद नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम करीम का था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर आप अहमद साबित कर दें तो आपके दूसरे खलीफा साहब कहते हैं मैं 5,000 रुपया दूंगा। आपके खलीफा जी। साहब जो मिर्जा कादियानी साहब के बड़े बेटे थे, बशीरुद्दीन महमूद अहमद उनका नाम है, उन्होंने कहा जी। कि अगर कोई बंदा साबित कर दे कि नबी पाक का नाम अहमद है, मैं उसको 5,000 रुपया दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको अहमदी नाम पे एतराज है तो आप हमें मोहम्मदी कह सकती हैं। भाई जब अहमद नाम साबित नहीं, मोहम्मद आपको मोहम्मदी कैसे कह दें? आप हमें मोहम्मदी कह दिया करें। अगर आपको मिर्जा साहब की निस्बत से मिर्जाई कह दें, बुरा नाम है? जी, वो कोई नाम नहीं है, ये तो एक किस्म की बस देखें जी, एक मिर्जा साहब का कहते हैं कि असली नाम, अनपढ़ किस्म का नाम है। मिर्जा साहब का असली नाम गुलाम है, गुलाम अहमद, ठीक, गुलाम उनका नाम है, ठीक है। तो आप जी, तो फिर आप फिर अहले ना आप अहमदी बनते हैं ना मोहम्मदी बनते हैं उस हिसाब से। हाँ जी, तो फिर हम क्या गुलाम बन जाए? तो फिर गुलामी आप कहें, फिर अहले गुलाम है। हाँ, तो फिर इस तरह का है कि अगर हम इतनी इसीलिए छोटी मिर्जाई छोटी कहते बातों हैं में ना, पड़ इसीलिए जाएंगे। आप लोगों को मिर्जाई कहते हैं कि मिर्जाई आपकी किताबों में कादियानी का कम लिखा हुआ है, मिर्जाई नहीं कहते, कादियानी कह देते हैं। कादियानी भी लिखा हुआ, मिर्जाई भी लिखा हुआ, मैं अभी आपको सबूत देता हूँ। मिर्जाई भी लिखा हुआ है अच्छा, किताब में, ये आप अहमदी सर से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? क्या अहमदी लिखा हुआ कहीं है? पे लिखा हुआ है? अहमदी कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, अहमदी जो दलील भी लिखा तो हुआ चाहिए ना। वो तो ज्यादती की है ना, क्योंकि अहमद नाम ही नबी पाक का आप नहीं मानते, तो अहमदी क्यों लिखा? यही तो हमारा सवाल है। बात दरअसल ये है कि ये कोई ज्यादती नहीं होती। हजारों लोगों का नाम अहमद है और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही नाम अहमद है उनका। नहीं, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद मानते हैं उनका नाम तो अहमद हो तो कोई अक्ल बनती है, अक्ल में आती है बात। आप उनका नाम ही अहमद नहीं मानते। जी जी, मैं ऐसा है कि मैं आपके पास आता रहूँगा। मैं आपकी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। ये नए साहब भी आए हैं, मुनीर साहब, मैं इनको सिर्फ सलाम करने आया था, तारुफ के मोस्ट लिए आया वेलकम, था। आप आए, आप तो आए, इंशाल्लाह 1000 बार आए। ये बहसें जारी रहेंगी। आप आए जी, लेकिन इनसे जज़ाकल्लाह, आप आए जी, आप आया जी, करें, जी, बिल्कुल जरूर। आया करें, आपसे बिल्कुल बादब तरीके से बातचीत होगी। अभी कोई जी, सवाल जी। है तो वो आप कर सकते हैं। मुझे बड़ी जी, स्क्रीन मेरे पास रखी होगा, मैं इंशाल्लाह आपसे पूछता रहूँगा। ये लें जी, मैं ले इस लें वक्त सिर्फ जी। सलाम के लिए आया था। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, ये मेरे पास है वाटर साहब, ये देख लीजिएगा, ये जी जी कॉल डाली हुई है। किसने जी, कॉल जी, डाली? फरमाइए। देखते हैं कॉल उनकी, देखते हैं। जी जी, ये देखिएगा जी, फरमाइए। इनके एक सेकंड होल्ड रखें यहाँ। ये बदर इनका अखबार था, अल बदर। जी जी मुंशी कासिम साहब का हदिया कासिम के नाम से ये नज़म छपी हुई है। इसमें वो ठीक है जी। कहते हैं, यहाँ एक और आलम बाअमल और जवान साले हैं कि जिनसे आज अमेरिका को है पूरी शनासाई। वो LLB हैं और MA एडिटर हैं रसाले के, जिन्होंने आज यूरोप को है हक की राह दिखलाई। किया है राज तश्तज़बाम जिसने ईसवियत का। यही वो हैं, यही वो हैं, यही हैं पक्के मिर्जाई। ये जनाब 17 जनवरी 1960 की जिंदगी में ये नज़म मुंशी कासिम की छपी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पक्के मिर्जाई हैं, यही वो हैं, यही वो हैं, यही हैं पक्के मिर्जाई। हाँ जी, आमिर साहब, ऐसा है कि ये कासिम साहब जो है ना, ये एक शायर हैं और से लीडर या रहनुमा या खलीफा या आप कह लें कि मुफ्ती या कोई ऐसे दर्जे पे नहीं थे, और ना ही ये उनका हमारे बड़ा पर दर्जा, लाजिम मैं है कि उनका हम, दर्जा बयान करता हूँ, मैं उनका दर्जा हाँ जी, आपके हम सामने बयान। हमारे पर लाजिम नहीं है कि हम उनकी हर बात मान उनकी लें। ना माने, मिर्जा साहब की तो मानेंगे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मिर्जा साहब की मानेंगे तो सुने फिर। मिर्जा साहब कहते हैं कि जिसने मेरे हाथ पर बैत कर दी, वो असहाब रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। ये मुंशी कासिम साहब ने मिर्जा साहब के हाथ पर बैत की। जी, बात सुनिए कि असहाबे रसूलुल्लाह में अगर बाद में आने वाले लोग शामिल होंगे तो वो हमारे जैसे, आपके जैसे सारे मुसलमान, हम सारे असहाबे रसूलुल्लाह ही हैं। हम सारे के सारे एक आप भी मुसलमान असहाबे होने के रसूलुल्लाह हैं। नाते रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ठीक है, आप भी असहाब रसूलुल्लाह हैं।
سر آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دوست ہیں. آپ اس پر تھوڑا سا وقت لگے گا. میں اس وقت آپ سے مختصر صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لفظوں کا ہیر پھیر جو ہوتا ہے نا، یہ شاعری میں اور سلیس میں اور پروز میں اور نظم میں بہت چلتا ہے. تو اس لیے آپ نے بیسک مقصد کی طرف جانا ہے. تو وہ ہمارا مقصد بھی ایک ہے اور آپ کا بھی ایک ہے. مطلب میں اگر آپ کو مرزائی کہوں گا گالی تو نہیں شمار ہوگی نا؟ نہیں گالی شمار ہوئے گی. جبکہ یہ گالی بن گئی ہے اس کے بعد یہ گالی شمار ہوگی. اب یہ گالی کب سے بنی ہے؟ یہ گالی جب سے آپ نے اس کا نام بڑا تحقیر سے لینا شروع کیا کہ جی او جی مرزائی آ گئے، جی مرزائی کافر آ گئے، تو تب سے یہ تحقیر کا لفظ بن گیا. اپنا منیر خان صاحب، یہ جی فارمولا ہے کہ اب یہ تحقیر بن گئی ہے. پہلے یہ عزت تھی، پہلے توقیر تھی، پہلے عزت کے نام کوئی سے عزت لیتے نہیں تھے. تھی. جی بالکل. ہاں پہلے ادب سے لیتے تھے، اب مرزائی کافر کہتے ہیں. تو تب سے اس کی عزت بات جو ہے قرآن و حدیث ہے. ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں کہیں پہ بھی آپ. یو آر ہاں جی، موسٹ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ. کہ اگر کوئی بندہ آپ کو مرزائی کہتا ہے، وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے خود اپنے آپ کو مرزائی لکھا. ہم گالی نہیں آپ دیتے. ہمارے ایسا بزرگوں نام کی اتنی باتیں مانتے ہیں تو باقی باتیں بھی مان لیں. ہم ان کا کوئی نام بگاڑ کر ایسا نہیں لینا چاہتے جو نہیں انہوں نے لیتے. خود کو جی نہیں بالکل کہا. نہیں لیتے. ہم ان کا بگاڑ کے نام نہیں لینا چاہتے جب خود انہوں نے اپنے آپ کو مرزائی لکھا ہے. اب اس کو اس سے بھاگنا یہ کوئی بات تو درست نہیں ہے. سر اس پر انشاءاللہ کرتے رہیں گے بات. یہ موضوع اچھا، ڈال رہے ہیں آپ کو سہیل ناصر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میری کال اٹھائیں. جی محمد جی سہیل ناصر میں دیکھتا ہوں. جی میں دیکھتا ہوں سر. ناصر مشرا صاحب. یہ بھی قدیانی. ناصر، یہ محمد یہ تو رانگ نمبر کچھ لکھا ہوا ہے. رانگ نمبر لکھا ہوا ہے. رانگ نمبر پر ہے. اسکرین ذرا بڑی کر دیں. آپ کو یہ حوالہ جو عمر بھائی یہ لیں. بتا رہے تھے وہ پڑھ کے بتا دیں. نہیں، ان کی سکرین بڑی ہے پہلے سے. اس کا جو ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ انہوں ہاں نے جی، مخلوزات جلد نمبر 3 اور یہ ہے بالکل بالکل صحیح ہو گیا. ملفوظات جلد 3 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے. اب 10 جلدوں والا انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں یہ ٹھیک. اکتوبر 1900 کون سی اکتوبر کی ڈیٹ ہے؟ یہ مجھے ہے بھی خود پڑھنی ابھی پڑ باریکی سے میں بھی نہیں پڑھ سکتا. جی یا واٹس ایپ پہ سینڈ کریں نعیم بھائی. یہ کر دیا عمر بھائی آپ کو. 1903 ہے 1903. نہیں، اکتوبر کی ڈیٹ 1903. جی 1903. 21 اکتوبر 1903. یہ 21 ملفوظ ہے. اکتوبر 1903. اچھا منیر خان صاحب، یہ لفظ ہے جی ملفوظ. جی بھائی. ملفوظ جی. کہتے ہیں یہ لفظ سے ہے. جو جی مرزا قادیانی صاحب کے لفظ ہیں نا، یہ ان کو امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور
اس لیے نماز نہیں پڑھاتے. فرمایا وہ مجھے آپ نے بڑا کر دیا. ٹھیک ہے نا، ابھی سامنے نظر تو آنا چاہیے، سب دیکھ رہے ہیں آپ کو. نہیں مواز صاحب کی سکرین پہ بڑا کرنے دیں. جی کس کو بڑا کروں، عامر بولیے. بھائی سوال آپ کو بھیجا ہوا ہے، وہاں سے پڑھیں. ٹھیک ہے پہنچ جائے. ہاں معین یہ الفاظ میں کے پڑھ ساتھ کے پڑھیں. سنا. ہاں انہوں نے کہا امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے. فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. چلو اب اس بات کو البدر اخبار، یہ جو ابھی میں نے البدر اخبار دکھایا تھا نا، الحکم اور جی البدر ان کے 2 اخبار چھپتے تھے. البدر اخبار میں 29 اکتوبر 1903 کے دن اخبار میں یہ بات چھپی تھی. جی وہاں سے لے کر انہوں نے ملفوظ میں ڈالا ہے. ٹھیک یہ ہو گیا. ملفوظات اکٹھے کیے گئے ہیں اخباروں سے لے کر. 8 نومبر 1903 اور 29 اکتوبر 1903 کے دونوں اخباروں میں یہ بات آئی ہوئی ہے. وہاں سے لے کر انہوں نے یہ بات درج کی ہے. اب اگر مرزا قادیانی خود یہ کہتا ہے جی کہ آنے والا مسیح وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے، تو ہمیں کوئی حدیث دکھانے کی ضرورت ہے؟ ان کو حدیث دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح مرزا بات ہے. قادیانی کی تحریر دکھائیں کہ بھئی مرزا قادیانی خود مانتا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ آنے والا مسیح دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. صحیح ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے ہی انکاری ہیں. ہاں اور وہ ایک ان کے انکاری ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی، وہ فوت ہو چکے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو تیسری جگہ نزول کے کہتے ہیں انکاری کہ کوئی نہیں ہے، عیسیٰ. نزول کے انکاری نہیں ہے. اچھا وہ اس کا کہیں پہ معنی تو عیسیٰ علیہ مرزا السلام صاحب کے کو نزول کے انکاری نہیں ہے، شخصیت بدلتے ہیں. شخصیت بدلتے ہیں. شخصیت بدلتے ہاں ہیں، ابھی یہ شخصیت. دوسرا سنیے نا، ابھی یہ دوسرا جو بندہ کہہ شخصیت کے ادھر بدلتے ہیں، یہاں سے حدیث کا انکار جو نہیں کرتے، بندہ شخصیت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرے بات یہ ہے کہ وہ بندہ کیا کہہ کے گیا ہے کہ عیسیٰ ایک عیسیٰ نہیں، 2 عیسیٰ کا ذکر ہے. نئی بات. ہاں یہ بھی ایک فراڈ ہے کہ حدیث یہ بھی ایک فراڈ ہے. دو عیسیٰ کا نہیں ایک ہاں جی ہی عیسیٰ کا ذکر ہے. عیسیٰ ابن مریم جی کا ذکر ہے. ان کا جو حلیہ ایک عیسیٰ ان کا اپنے بنا رہے ہیں نا، مرزا کو بنا رہے ہیں. ہاں اس کو فٹ کرنے کے لیے وہ ساری بات فٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے چھیڑی ہے وہ یہ کہ ابھی کوئی کسی کتاب، حدیث کی کتاب میں قرآن کی تشریح یا تفسیر میں یا قرآن کے معنی میں یا قرآن کی آیت میں کہیں پہ بھی غلام کا لفظ، جو غلام مرزا کو غلام احمد ہے اس کا نام تو کہیں نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو منسوب کبھی قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں حدیثوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فٹ کرتے ہیں کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام یہی بن کے آئیں گے دنیا میں. اچھا حضرت وہ سیل ناصر آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کال ڈالی ہوئی ہے، وہ قادیانی ہے، اس کو اگر لے لیں تو ان کی بھی بات سن لیں. ہاں جی محمد سیل ناصر صاحب کریں بات. دونوں کا دمبا. جی محمد سہیل صاحب والیوم ان میوٹ کیجئے، بات کیجئے. ہاں جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع مسلمانوں کو. اجماع امت مسلمانہ کی خدمت میں نہایت ہی محبت برا سلام عرض کی. ایک منٹ عمر بھائی گال اگے ترسی تا نا بولنے پہلے اپنا عقیدہ درست کر. سانو مسلمان کہنا خبیث عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ درست کر کے گال کر، غلط گال نہ بیان کر. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا یہ ہمیں مسلمان پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اصل میں عامر واقعی بھائی مسئلہ یہ ہے، خبیث عقیدہ ہے. عبدالحکیم پٹیلیو کو جماعت سے اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہنا ایک خبیث عقیدہ ہے بقول بشیر احمد میں کلمۃ الفضل 1915. یار عامر واقعی بھائی میں نے خطبے واسطے بلایا تو میں چپ کر کے بیٹھ جانا وہاں سر سے ٹوپی رکھ کے. بولیں نہیں بولے نہیں دیندے تو کی کریے ہوں. نہیں آپ بولیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، سچ بولے سچ. ایک جی بولو آپ بولو جی. ایک سیکنڈ ذرا نعیم خان صاحب، اپنا منیر خان صاحب، یہ مجھے آپ بڑا اسکرین پہ رکھا ہوا ہے نا،
ये कलमतुल फसल इनका रसाला है, रसाला तो नहीं है, आर्टिकल है, रिव्यू ऑफ रिलीजन रसाला है, उसके अंदर मार्च 1915 का। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा है, मिर्जा बशीर अहमद एम.ए. वो कहता है कि हजरत मसीह मऊद की इस तहरीर से बहुत सी बातें हल हो जाती। ऊपर एक तहरीर उन्होंने पेश की है, कहते हैं इससे बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। पहली ये कि हजरत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इतला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। अच्छा। और ना सिर्फ ये इतला दी बल्कि हुक्म दिया कि तू अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझ। अच्छा। अब ये कहते हैं सेल जो जिनको आपने कॉल पे उठाया, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे मीठे मीठे मुसलमान भाइयों। अब कहना चाहिए इनको? नहीं कहना चाहिए फिर। नहीं कहना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हाँ, कि अल्लाह ताला ने आपके मिर्जा साहब को बताया है कि अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझ। अच्छा। नंबर 2, दूसरा ये कि हजरत साहब ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को जमात से इस वास्ते खारिज किया कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। अच्छा। लो जी, ये दूसरा मसला हो गया खड़ा कि उसको जमात से निकाल दिया। तीसरा ये कि मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा एक खबीस अकीदा है। क्या है जी? खबीस अकीदा बोल रहे हैं। नजर आ रहा है जी? जी जी जी, पढ़ रहे हैं। एक ये अकीदा एक खबीस अकीदा है। हाँ, ये पर लिखा है। मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा एक खबीस अकीदा है। खबीस अकीदा है। अब बताएं जी, ये खबासत फैला रहे हैं मोहम्मद सैयद नासिर साहब के मोहब्बत कर रहे हैं हमसे? मोहब्बत है कि खबासत है? उस हिसाब से फिर खबासत ही हुई ना। खबासत है। अच्छा, तो अब आप सैयद नासिर साहब दोबारा सलाम करें। कैसे करना सलाम हमें? यार आमिर वाबी पाइन यार मैंने खुतबे वास्ते बुलाया तो मैं चुप करके नमाज की टोपी बह के सुन लेना थोड़ा मेरी तरफ मुंह करके सलाम करें, जो करना है जैसे करना करें। दोबारा करें। हो गया जेड़ा इफ्तिताई कलमा नहीं, सी। नहीं, अच्छा दोबारा तुसी करें, दोबारा करें। मैं यार जिस मकसद वास्ते इत्तेफाक से थोड़ी बराड़ सामने आ गई क्योंकि मैंने कहा ये जेड़े अपने भरा ने ये कितने बैठे ने ते नवी बैठक लभी है टिकटॉक च ते मैं वेखी तो सारे वही चेहरे बैठे सी। मैं तो मौलवी साहब वास्ते आया सी। एक तो दो गल्लां मैं करनी सी। मौलवी साहब बिल्कुल नरम नवा ये ते बिल्कुल शागिर्द ना जी इन्हां दा। मौलवी साहब ਉਹੀ मैं ਤਾਨੂੰ मौलवी साहब तानू ही सम कह रहा सी कि तुसी मौलवी साहब आप अच्छा सामने आए, बड़ा कैमरा करके आपसे बात करेंगे। बिल्कुल मैं सामने आता हूँ जी। मैं सामने आए, आता कैमरा करके बड़ी स्क्रीन पे खुद आए। मैं बंद करता हूँ। ये हूँ। लो जी, ये लो जी। कर लो जी शिकार मौलवी साहब ने। नहीं, मैं मौलवी साहब को मुबारकबाद देने आया था कि मौलवी साहब आपने अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया है। ये रद्द कादियान में बड़ी महारत है तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होना है। आप भी इस महाज पे कदम रखें क्योंकि हमें ना मुकाबला बहुत ज़रा टक्कर का चाहिए। तो ये फूक की तरह हम इनको उड़ा देते हैं तो शायद आपके आने से कोई फ़र्क पड़ जाए इस ग्रोह में ना। मुकाबला केड़ा है अंदरों मरजियां ने कुड़ियां मारियां ने अपनियां ब्रांडा ते सानू लैंदी कोई। अबू बकर भाई कर लो, कोई नहीं गल, एंजॉय कर लो। अच्छा दूसरी बात ये कि अभी ये आमिर वाबी बाइन जो हैं हमारे बड़े प्यारे मोहतरम है, बड़ी इज्जत है इनकी दिल में। हम अपने आप को अहमदी मुस्लिमा कहना समझते हैं, जमात अहमदी मुस्लिमा। ये पॉलिश पुरानी होगी नवी डब्बी आन ये पॉलिश नहीं, मैं उसकी वजह बता रहा था कि ये जो हमारी जमात है ना अहमदिया मुस्लिमा, इसकी निशानदही तो नबी पाक ने कर दी थी अपने आखिरी दौर में 73वीं जमात कह के 72 एक तरफ और 73 है तो। और जमात का नाम जो था वो क्योंकि हदीस में लिखा नहीं था, सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उनकी पहचान सहाबा कराम के हालात हैं, उनसे उनकी पहचान होनी है। तो इस वजह से बानी सिलसिला जो हमारे जमात के बानी हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब, उन्होंने हमारी जमात का जमात अहमदिया नबी पाक की जो एक दूसरे नाम की एक सिफाती नाम है अहमद, उसके नाम से हमारी जमात का जमात अहमदिया मुस्लिमा रख दिया है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपकी मालूमात में इजाफा करनी थी कि इब्तदाई अगर आपने आपकी बात का जवाब मुनीर खान साहब खुद देंगे। जी दें जवाब मुनीर खान साहब। अच्छा जी, तो अभी जो है मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ तवज्जो हुआ था। वही बात वो दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा नाम जमात अहमदिया मुसलमान रखा है हमारे मिर्जा साहब ने। जी जी, तो अभी हम लोग दूसरा एक भाई आया था उससे भी यार आमिर वाबी पाइन अमाना ची ख्यानत ना करो।
मैंने नहीं, जो नहीं, इफ्तिताही सुनिए ना। कलमात थे कि नबी पाक की निशानदेही थी 73वीं जमात की कि 72 एक तरफ निशानदेही किधर है निशानदेही? 73वीं पेश जमात करो, कौन सी 73वीं पेश जमात की करो ना। निशानदेही की जरा हदीस भी बताए ना, पूरा कौन पूरा सी पूरे हदीस अल्फाज बताओ, बोलते ना, ये बताए। थोड़ा जो तुसी भाई हवाला भी अद्धे देना जुमले है, ना ये बात किधर है? नहीं भाई उनको बात भाई करने साहब हवाला दिया करें, हवाला गुफ्तगू करें। देखिए हम स्केच पहले लगाते हैं, पढ़ते बाद में। जी बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਨੂੰ मसला ये ਪਤਾ ਵਾ है, ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ मसला ये ਅਨਪੜ੍ਹ है, ਆ ਤੇ सुनिए ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ सुनिए ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ सुनिए ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋ ਨਾ सुनिए ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ सर ਤਾਂ सर सुनिए सर, मसला ये है अहमदी मोहम्मदी और जो है ये तो हमारा नाम बनता है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है या उनका अपना नाम है, उनकी पैरवी करने वाले हैं। जबकि आप अहमदी तो बनते ही नहीं हो ना। दूसरे भाई से भी तो यही बात हो रही थी कि आप अहमदी अपने आप को किस हिसाब से, किस लेवल से कहते हो, किस हिसाब से कहते हो, ठीक है। अच्छा जी मोहतरम मेरे मुनीर खान साहब बड़े प्यारे मुझे आप लगे हैं अल्लाह के फजल से। कम ही लोग हैं जो मुखालिफों में अच्छे लगते हैं। पॉलिश नवी पॉलिश आड़े नहीं काम कर रही है, पुरानियां पॉलिश ऐसे नहीं चढ़ दिया। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था झगड़ा यही बात का है। हम ये समझते हैं कि इस्लाम और नबी पाक की जो भी इस टाइम सही तालीमात हैं वो हम दुनिया में फैला रहे हैं और इस्लाम की सही तालीमात का असल में इशाअत जो है उसकी तबलीग हमारे इस टाइम खुदा ताला ने ये 73वीं जमात के ज़िम्मे कर दी है। हमारा आपसे ये मुतालबा है कि खुदा रा आप कौन सी के तालीमात बस है? की कौन सी तालीमात अब है? कुरान और हदीस की ना हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप खुदारा कौन सी अपने तालीमात मजहब है? का नाम नबी करीम के सामने उम्मतुल मोमिनीन ओ ने यार, हाथ मारे, नहीं यार, उनको खुद गलती भाई, लगी, नहीं गलती बर्दाश्त लगी, पाएंगे उसकी यार। गलती पर बहुत हो गई। ये तालीमात है तुम्हारी? नहीं वो ये तलीम तालीमात है, बताएंगे। वाला मैं तो देता कौन हूँ। सी खास वो सादा सा सवाल पूछता हूँ, कि इंसान जो पैदा होता है वो कितनी बार उसको मौत आती है और दोबारा कब उसने उठना है? मोहम्मद भाई मुझे जवाब दीजिए। अच्छा जी हम तो क्योंकि अहमदी मुसलमान है और हमारी बुनियादी कुरान के ऊपर कायम है। आपका पता नहीं आप मुसलमान है कि नहीं है। अब मैं सादा सा वही सवाल बताने पूछ लगा हूं ना। कुरान में अल्लाह ताला ने ना मौत की दो कैफियत बताई है कि एक मुस्तकिल मौत है और एक नींद की हालत में मौत की जाती है। जी, इसके अलावा मुस्तकिल कुरान मौत। से हमें जी मुस्तकिल मौत की मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान को कितनी बार आती है और दोबारा कब एक ही बार उससे आती जिंदा है। होना है? एक ही बार एक ही बार ठीक हो आती गया जी। है। अच्छा मेरे अगर आप नवाजिश होगी पहली बार आपके मेहमान खाने में मदऊ हुआ हूँ तो थोड़ी सी मेरे पे इनायत तो करम फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। जी फरमाइए। ये आपसे वादा करता हूँ चाय पानी का खर्चा नहीं डालूंगा आप पे, भूखा ही चला जाऊंगा। नहीं चाय भी पिला के भेजेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। मैं ये अर्ज कर रहा था हमारा और आप मेरे मौजू पे मैं आ रहा हूँ। मैं आपने ये मान लिया कि इंसान को जो मौत आनी है, हकीकतन मौत जो हकीकी मौत है वो एक ही बार आनी है, ठीक। और दोबारा कब जिंदा होना है? ये तो जजमेंट डे के ऊपर जब जजा सजा का दिन होगा। जी जजाक और इसके दिन क़यामत के बाद दोबारा जिंदा उठना है क़यामत के बाद, ठीक है जी। और आपका अकीदा यह है कि दुनिया में जो है क्या कहते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद दुनिया में आपको नकल की इजाजत है आमिर वाबी पाइन से आप हवाला पकड़ लें। मैं सादे से सवाल पूछ रहा हूँ कि दुनिया में नहीं आएंगे। आपको मुश्किल होनी है, अभी आपका नया कदम है आपका। नहीं कोई आमिर मुश्किल वाबी नहीं पाइन आनी। से फौरन हवाला पकड़ ले। अभी मैं आ जाना। सादे सवाल करता हूँ, सादे सवाल करता हूँ और मौजू की तरफ आता हूँ। आमिर भाई अच्छा इनका तो नवा कदम है, आपको तो एक साल हो गया है। उनको बात करने दे, खामोश रहो। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि इंसान को हकीकी मौत एक बार आनी है और दोबारा क़यामत को जिंदा होना है, ठीक। और जबकि आपका अकीदा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद दुनिया में आएंगे और कहीं पे इमाम मेहदी बना रहे हैं, कहीं पे उनको नबी बना रहे हैं, ठीक है। जबकि उन्होंने उनकी सब दुनिया जानता है कि वो फौत हुए, उनकी कब्र भी है, उनका जनाजा भी हुआ
اور انہوں نے دوبارہ زندہ قیامت کے بعد ہونا ہے، ٹھیک؟ تو پھر امام مہدی کیسے آئیں گے بن کے، اور اس بارے میں مجھے بتائیں، اور عیسیٰ بن کے، عیسیٰ نبی بن کے کیسے آئیں گے، اس کی تفصیل مجھے بتائیے۔ اچھا مولوی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا اس آج پہلا دن ہے اس آپ کے اس میں، تو ایک دم ہی آپ گرم گرم کھیر نہ کھائیں، نہیں، میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں نا، میں تو آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں۔ میں آپ کو بنیادی موقف رکھ دیتا ہوں۔ جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ٹائم اگر اسلام کو اور نبی پاک کی حقیقی اور سچی تعلیمات کو زمین پہ کوئی بنی انسان کو، گمراہ انسانوں کو پیش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم جو صحیح تعلیمات ہیں وہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہی پیش کر رہی ہے۔ ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ خدا را آپ سے اسلام کی، پوچھ رہے ہیں، ان کو پیش کریں، میں نے تعلیمات کہا، پیش میں نے کریں۔ جو سوال کیا، مجھے جو سوال یار آپ اس کا صبر تو جواب کر لو نا، چاہیے۔ میں ابھی آپ پہلا دن ہے نا، موقف تو سمجھ لو نا۔ ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را آپ لوگوں سے اسلام کی اور نبی پاک کی تعلیمات کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جا رہی، اور آپ لوگوں کے عقائد ہی انتہائی قرآن کے مخالف اور نبی پاک کی تعلیمات، تو آپ لوگ اپنے مذہب، ٹھیک ہے، اور ایسا کون سا آپ کے پاس، کون سی دلائل ہے، کون سی آپ کے پاس ثبوت ہے، کون سا ثبوت ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو؟ کہیں پہ آپ کہتے ہو امام مہدی بن کر آئیں گے دنیا میں، غلام احمد مرزا، غلام احمد قادیانی، اور کہیں پہ جو ہے عیسیٰ مسیح کی جگہ پہ آئیں گے۔ اچھا جی، ہماری بنیاد ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کریں گے۔ نبی پاک نے جو آنے والے کے بارے میں نام استعمال کیے، ہم تو وہی نبی پاک نے ان کو آپ امام مہدی غلام کہا کا ہے۔ ذکر مجھے کسی حدیث میں بتا دیں کہ غلام دنیا میں آئے گا اور وہ نبی بن کر آئے گا۔ اچھا، اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ جس طرح ایک سورہ صف کی آیت ہے نا، اسماؤ احمد والی، اس میں حضرت عیسیٰ نے احمد کی جو ہے نا نبی پاک کے بارے میں خوشخبری دی تھی وہ کہ نبی دنیا کے پاک سب سے خوبصورت انسان، ہاں جی وہی تو میں بتا رہا ہوں، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان امام الانبیاء کا ایک ظہور ہونا ہے دنیا میں۔ میٹھا میٹھا میرا محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو جس طرح ان کے نام کی پیش گوئی نا، وہ ایک صفاتی نام ہوتا ہے، اصل نام ان کا محمد تھا، اور قرآن میں ان کو 4 دفعہ محمد کے سے ہے، ان کو کبھی بھی احمد کے نام سے نہیں بلایا گیا خدا تعالیٰ نے، اور جتنی بھی حدیث ملتی ہیں وہ محمد کے نام سے ہی ان کو مخاطب کیا گیا ہے، کلمے میں بھی محمد رسول اللہ ہی آیا ہے۔ تو اس وجہ سے صفاتی طور پہ ہم حضرت مسیح موعود کو جو ہے وہ وہی اس سے منسوب کرتے ہیں۔ کیسے منسوب، کس نظریابی؟ عامر بھائی انہوں نے جواب نہیں دینا ہے، عامر بھائی آپ ان سے جواب ان سے سوال جواب کریں۔ یہ آپ کی اچھی تیاری کرا دیں گے، عامر صاحب جو ہے نا پروفیسر ہیں اس معاملے میں۔ ابھی ایک بات آپ کو، ایک ہی سوال ہے میرا، چھوٹا سا، ایک ہی چھوٹا سا سوال، نہیں بھائی ایک ہی سوال ہے، میوٹ رکھیں چھوٹا سا عمر بھائی، ایک ہی سوال ہے، میرا بڑا آسان سا سوال ہے۔ میوٹ کر لو تھوڑے سگنل صحیح نہیں، میوٹ کر لو۔ منیر خان صاحب، آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی۔ میں نے خود کیا، دوسرا بھائی بات کر رہے تھے، دوسرے بھائی بات کر رہے تھے تو میں نے اپنی آواز بند اچھا، میں پوچھ رہا ہوں آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا؟ پہلے دیکھیں، موضوع بدلانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ اگر آپ جواب اچھا نہیں دیں گے، میں میرے محترم مولوی صاحب، کون سی بات؟ میں آپ سے کوئی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا، مناظرے پوچھا میں نے، انسان کی موت، حقیقی موت کتنی بار آنی ہے، دوبارہ کب زندہ ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک بار موت آنی ہے اور دوبارہ قیامت کے بعد زندہ ہونا ہے، ٹھیک؟ تو اس بارے میں نے سوال کیا کہ آپ تو مرزا غلام احمد کو دنیا میں کبھی امام مہدی کے روپ میں پیش کر رہے ہو، اور کہیں پہ عیسیٰ بن مریم کے روپ میں پیش کر رہے ہو۔ اچھا، تو آپ کے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے، جبکہ انہوں نے آنا تو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اچھا، اب میں نا عامر بول رہا ہوں، اپنا منیر خان صاحب۔ جی عامر بھائی بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ جی ہے جی۔ سورہ صف کھول لیں گے؟ ایک منٹ، ہاں ایک منٹ میں لاتا ہوں۔ ہاں،
अभी देखते हैं कि ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹਰ ਭੰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਿਆ ਕਰੋ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਭੰਡਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਮਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੂ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੈ नरमी ना कर मुझे तो कुछ पता नहीं ते थे आके साड़ा खून साड़न आ जाने पप्पू बेशरम आदमी ਨਰਮੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਬੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਗਰਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ अमर भाई अच्छा, ये आमिर साहब इसको करने तो बाद कोई मसला नहीं। पप्पू तू जाए ले किसी भरा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ और आस के तो नहीं आ जाऊंगा तो हाँ पप्पू खामोश हो जा माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं कोई बात कुरान पाक की सूरह सफ खोलें उसमें देखते हैं कि ये नाम कह रहे हैं कि नबी पाक का तो नाम अहमद कहीं है ही नहीं। एक मिनट, मेरे पास आसन अल बयान है, ये पढ़ा हूँ पढ़ी कोई मसला नहीं वो ऊपर तो आयत तो वही होगी ना। जी वही होगी इंशाल्लाह। एक मिनट, ये अभी ये आगे जी, एक मिनट फेरस जी। अभी सूरा का नाम क्या बोला जी, क्या बताया जी? सूरह सफ की ये 6ठी 7वीं आयत है ना, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सूरा सफ। वाइस काल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सूरा सफ, एक मिनट जी, मैं 6 नंबर बस 6 नंबर पे नाम है जी, नंबर 62 है, आज नंबर 6 है। सूरत नंबर 62 है। एक मिनट, हाँ ठीक हो गया 61 है, 61 है। 61 सूरा सफ, बिल्कुल जी है जी। इसको खोलें। सफा नंबर जी 1277 जी, 1277 जी, 1277 78 और ये 77 जी। हाँ जी, कितने आयत नंबर कितनी है? 6 नंबर आयत नंबर 6। ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਭਾਬੀ ਪੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ आयत पढ़ें। 1 मिनट, सेलना सर सब पता लगे। वाइस काल ईसा इब्न मरियम, आयत नंबर गालबन 6 जी। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइस काल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन व रसूलन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुमुल बिल-बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। अच्छा, इसका तर्जमा कर दें जरा, क्या तर्जमा नीचे लिखा हुआ है? जुमा है बनी इसराइल मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है।
हाँ, ये है वो बात, ये आपको पढ़ाना था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल से कि या बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहले आने वाली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ जी, और अपने बाद आने वाले रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद है। अहमद है जी। अब ये सेल मोहम्मद अगली सेल आयत का नासिर तर्जुमा साहब भी से, करें, फलम्मा जाओ बिल बय्यिनात का। अब सेल नासिर साहब से अगली आयत पूछना का तर्जुमा है, भी करें ना। हाँ वो भी करते हैं। मोहम्मद सेल नासिर साहब से पूछना है जी, कि सेल नासिर साहब, ये कौन है, किन का जिक्र है इस आयत में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताइए आप भी। जिनका नाम ਅੱਛਾ अहमद ਯਾਰ है। ਆਮਿਰ ਵਾਬੀ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਰੱਦੇ ईसा अलैहिस्सलाम ने किसकी बिशारत दी थी कि मेरे बाद आने वाले रसूल की बिशारत देता हूँ जिनका ਮੈਨੂੰ नाम ਪਤਾ अहमद ਹੈ ਯਾਰ ਅਭੀ ਉਹ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ वो ਮਨਾਇਆ भाई ਹੈ मैं जरा सवाल पूछा था ਉਹ जवाब ਜਿਸ दे ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ, ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ मुनाजरा तो नहीं हो रहा सर, सवाल जवाब हो रहा है, सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब हो रहे। अच्छा जी, इसमें इस्माउ अहमद जो है ना, हम इसके मज़दाक लेते हैं। पहला मज़दाक है हज़रत नबी पाक इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਤ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ भाई मज़दाक सवाल समझते हैं। हमारा ये है ये कि सेकंड, वह मुबश्शिरम बे रसूल, बशारत देता हूँ एक रसूल की जिनका नाम अहमद है, जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद है। ये किसकी तो बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी? या नबी पाक की दी या आपके बकौल आपके मिर्जा किसकी दी है? इसमें पहला मिसदाक अव्वल वो मिसदाक मिस्ताक जो है पहला यार, जो पहला दूजा मिस्ताक मज़ाक नहीं। किधर से आ गया बीच में? बशारत किसकी है? खबर तो एक बंदे के बारे में दी ना ईसा अलैहिस्सलाम ने। हाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी पाक की खबर दी है। हाँ कड्डो वो जड़ा इब्ने माजा ने किया सी ना खलो तशीदे खलो दा। खलो 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 नबी अलैहिस्सलाम की खबर दी है ईसा अलैहिस्सलाम ने, हैं? हाँ जी दसिया तो है, और किदा दसिया पक्की गल है। कड्डो वाला नहीं मैनू पता है ਤੁਹਾਡਾ यार आमिर वाबी पाइन इन्ना तो यार तजर्बा हो गया। तो मैं मौलवी साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। टीका नहीं मार। पहले था अल्हम्दुलिल्लाह में, बाकी जड़ा है ना, बाकी ये फिर मेरी क्या स्क्रीन नाल बड़ी कर दें जरा, बड़े बड़े मनाजरे अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा है ना, बड़े बड़े मनाजरे कर ये चुके मेरी हैं। स्क्रीन बड़ी कर दें। नहीं मवान भाई को बड़ा कर दें जरा स्क्रीन पे। ये लाओ जी, ये लाओ जी, ये लाओ जी, बिग स्क्रीन जी, आ जाओ जी। नहीं इनको नहीं मवान भाई को करना था जिनका वो नहीं ममान भाई को करना है, अच्छा ये लो जी, ये लो जी, नहीं ममान भाई। ओहो नदीम परवेज आ गया, गलत हुआ गलत हुआ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं नदीम परवेज का हो गया है, नहीं ममान किधर है? वो तो कॉल पे देखें, वो तो एक मिनट। नहीं ये जिनका जो तो ये नहीं स्कैन लगा में हुआ नहीं लगा हुआ जिस पर सब्ज रंग का रंग नजर आ रहा है, अच्छा इनको सब्ज रंग नजर आ रहा है जहाँ पर। हाँ ठीक हो गया, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। मौलवी नईम साहब दिल्ली बरूजी हो गए। लो जी ये कहते हैं अच्छा सुने जी, इनके मुरब्बी साहब कहते हैं कि मसीह मऊद मिर्जा साहब जिस वक्त भी इस्मो अहमद पेश गोई का जिक्र फरमाते थे, इसका अव्वल मिस्ताक खुद को करार देते थे। ये बात है। ये कहते हैं अव्वल मिस्ताक नबी करीम है। मर गए इन था। अखबारों में लिखा हुआ है कि मर मिर्जा गए साहब था जिस थे, वक्त मर भी गए मसीह था मऊद थे। पेश गोई का जिक्र करते थे, उस वक्त इसका अव्वल मिस्ताक खुद को करार देते थे। सोहेल हाँ नासर जी। साहब तबीयत साफ होइए। मोहम्मद सेल नासर साहब ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਨੇ ਵਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਦੇ ਪਾਉ, ਝੂਠ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਨੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ थोड़ी सबूत दो ना, अव्वल दलील मिसाल भी तो कौन है? मंगी है, नबी मैं करीम ने। असल दलील मंगी है, दलील दो ना सरकार। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਦਵੋ ਮਿੰਟ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਕ ਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਸਾਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ देखो जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। पहले ये दलील ना दी चूफी साहब। ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਵਲੀਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਸਦਾਕ ਅਹਿਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ clear ਕਰੀਮ ਕਰ ਲਓ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਵੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਲਗਾਓ ਅਵਲੀਨ ਪਹਿਲੇ। ਮਿਸਦਾਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਵਲੀਨ ਮਿਸਦਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਵਲ ਬਕੌਲ ਮਿਸਦਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਅਵਲੀਨ ਪਾਕ ਨੇ, ਮਿਸਦਾਕ ਹੁਣ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਦਲੀਲ ਲਾਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਲਗਾਓ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਪੁੱਛੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਹੈ। कुरान मैं पुकार रहे बताती थे, हूँ, नबियों अपनी की दोस्त दलील है। चाहिए। कुरान नहीं पुकार भाई, रहे हैं। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਇਹ ਉਮੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਰਬਾਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ ਓ ਨੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਯਾਰ। ना जी, बिल्कुल ना जी, ना ना जी, आप मोहम्मद भाई, सुहेल साहब, नसरानी है, सुहेल साहब। नसरानी है। देखो हो गया ਇਹਨੇ तो ਨਸਣਾ साई ਸੀ। छोड़े जी। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਲੇ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨਸਰਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਾ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ दैट। मीर आहिद हफीज डॉक्टर, ये कौन साहब है जी? अभी देखें जी, किसको बुलाऊं जी? एक है मिस्टर आहिर ऑफिशियल, दूसरा है जी डॉक्टर डारिंग। दोनों को उठा ले, दोनों ठीक है। ये लो जी, दोनों अपने भाई हैं। ये लो जी। आप जिसको मर्जी उठाए मजे ही नहीं आते। यार किसी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। किसी कादियानी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर नजीर साहब, मीर लतीफ की ब्रॉड पे खुद कुछ हमला हो गया जनाब। अच्छा आप मैं गया हूँ, एसके को बच्चे को घेर के बैठे हुए थे जी, मुनाजरा खेल रहे थे। मैंने आपका नाम लिया है, जनाब मीर लतीफ साहब ने उठाया, बोरिया बिस्तर कंधे पे रखा है, मुझे कहते हैं भाई शर्तें सुन लो, एक सवाल तुम करोगे उसके बाद तुम चुप करके बैठ जाओगे, मैं जवाब दूंगा, समझ आए ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। ना समझे मैंने तो कहा चले जाएं वापस। हाँ, मैंने कहा जी सुने, सवाल सुने। कहता जी सुनाओ। मैंने कहा आमिर नजीर साहब का 600 यूरो, बस इतनी बात निकल। अल्लाहवान वाला हफीज अपनी ही ब्रॉड से 6 मॉडरेटर अपनों के बैठे हो, ये अभी की आपको बता रहा हूँ। आमिर नजीर साहब अपनी ब्रॉड से भाग गया, मीर लतीफ ब्रॉड छोड़ के चला गया, मुझे गालियां गुलियां दे के नीचे उतार के सीटें सारी फुल करके फिर उसको वापस बुलाया कि ये ऊपर ना आ जाए, और कमेंट भी ब्लॉक करके। माशाल्लाह। ये जनाब आपके नाम का वहां पे डर हुआ पड़ा है, और मुकर गया। कहता मैंने तो कोई 600 यूरो नहीं देने। कहता वीडियो का कोई एतबार नहीं होता, अल्लाह का हुक्म है कि रसीद लेके आओ, लिखा हुआ दिखाओ, वीडियो का कोई एतबार नहीं होता। वीडियो मेरी बनाई फिर मैंने नहीं देनी। हाँ, ये कही है उसने। ये लो जी, दूसरे भाई भी आगे। ठीक है, पर हम जाते हैं। मेरा दिलीप माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम या शेख, ये सारे मुसलमान ही है, कुर्सी खाली रखे ना नदीम परवेज यार एक बंदे की जगह मैं जा खाली रहा रख हूँ लो। अमर भाई, मैं जा रहा हूँ। असल में वो पहले से उन्होंने नहीं नहीं request भाई डाली तुसी थी, बैठो, तो मैं मैंने थल्ले बोला जा रहा कि बस एक मरज़ई वास्ते सीट खाली रखो, मैं थल्ले बैग सुन रहा। मैं नीचे जाता हूँ, आप बैठे ना यार, आप बैठे, मैं सिर्फ ये खबर। अभी यार आओ, मौलवी अभी बह आए जा ना, यार, अभी की हो आओ, गया अभी तेनू? बह जा तू, बह जा, सोना लग रहा, मैं थल्ले जा रहा। चलो जी। हाँ बच्चे। जी कारी साहब मेरा एक सवाल है। जी जी बोलिए जी। ये जो खत्म नबूवत सवाल ये है, ये जो खत्म हाँ जी। नबूवत यूनिवर्सिटी है ना, ये कादियानी, इसको काल डालें। आओ चलो इन्हें किसके चुको। जी? खत्म अच्छा, नबूवत ठीक हो गया। खत्म नबूवत ये यूनिवर्सिटी, अहमद जान बहुत। एक ठीक अहमद है जाट। ये आया जी, ये रॉन्ग नंबर अभी तक शोर है, रॉन्ग नंबर। तो रहने दें, इसको ना उठाएं, ये अपने मुसलमान ही है ना। खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी, खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी। हाँ। ये नाम है। हाँ जी, इसको इनवाइट करता हूँ, उसने रिक्वेस्ट नहीं डाली हुई। इनवाइट इनवाइट करता हूँ जी, किया जी। हाँ बच्चा जी, बच्चे
जय भाई करें बात। आमिर भाई ये मौलवी साहब को ये भी बता दें कि बच्चों की तस्वीरें बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगाना, क्योंकि ये जो कादियानी है ये बहुत कुत्ते हैं, ये आपके बच्चों की तस्वीरें लेकर वो अपनी बराडों पर टांगेंगे और उसके बच्चों बाद को पीछे करें, बच्चों को पीछे रखें, कैमरा बंद करें। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल बच्चों को सामने नहीं लेके ठीक हो गया, ठीक हो गया। आना।